Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. So here case scenario is based on asset recognition with a major topic on Ind AS 105. So where we will discuss topic of non-current asset held for sale. So let us see data given in this scenario. A freehold property was acquired some years ago for rupees 40 lakhs and at the beginning of current financial year after cumulative depreciation of rupees 11 lakhs have been recognized. The estimated value in use of the property is rupees 25 lakh 50,000. So shortly thereafter, after a few days, so as a consequence of a proposed move to the new premises, the freehold property classified as held for sale when a fair value less cost to sell is assessed at rupees 25 lakhs. Further, we are given at end of third quarter of current financial year, the property market has improved and fair value less cost to sell is reassessed at rupees 26 lakh 50,000. Then again at the end of current financial year on 31st March, which is the reporting date, the property market has continued to improve and fair value less cost to sell is now assessed at rupees 30 lakhs. Subsequently, the property is sold for rupees 30 lakhs. So now different MCQs are given. So it is given that number 1, what is the gain or loss to property to be charged to P&L at the beginning of current financial year. Again, they are asking second MCQ, what is the gain or loss on property to be charged to P&L. So when property is being classified as held for sale. तो स्टार्ट करते हैं तो पहले देखते हैं डाटा जो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में. सो इट इज गिवन दैट सो वी हैव अ प्रॉपर्टी एंड इट वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट सम टाइम अगो. इट्स कॉस्ट इज गिवन रुपीज 40 लाख. देन दिस इज करंट फाइनेंशियल ईयर. सो एज ऑन 1st April ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर सो वी आर गिवन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 11 लाख. तो वो आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11 लाख. इसमें बैलेंस इज WDB ऑफ दिस प्रॉपर्टी which is 29 lakhs. And then it is given that now its fair value is value in use. It is assessed at rupees 25 lakh 50,000. So we are given its value in use, which is also called as recoverable amount. Recoverable amount of this property is assessed as rupees over 25 lakh 50,000. Then it is given after some time, which is after a few days. Now it is given that so company wants to propose to move to new premises. So therefore freehold property classified as held for sale. तो इस प्रॉपर्टी को अब आपने क्लासीफाई कर दिया है एज हेल्ड फॉर सेल. At time, what is its fair value less costs to sell. तो वो भी आपको मेंशन किए हैं एज ऑन दिस डेट. नाउ फेयर वैल्यू इज रुपीज 25 लाख. Then it is given at the end of third quarter, which is 31st December. Now it is given that so market value of the property has improved and now this value is assessed at rupees 26 lakh 50,000. So as in this date, what is the fair value? This is assessed as 26 lakh 50,000. Further, at the end of our current financial year, which is reporting date 31st March, so this value is reassessed at rupees 30 lakhs. And finally, later on, it is sold for rupees 30 lakhs. अब आपके डिफरेंट MCQ है इनके बेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटर्मिन करना है नंबर 1 MCQ में. सो इन बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर हाउ मच इज गेन और लॉस विच विल बी चार्ज टू P&L. इट मीन्स वी हैव टू सी व्हाट इज द गेन और लॉस. सो दिस इज एज ऑन 1st April. तो अब देखिए 1st April को इमीडिएटली आपकी बुक वैल्यू है 29 लाख और जो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 25 लाख 50,000. इट मीन्स देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस. तो इस डेट को इम्पेयरमेंट लॉस राइज हो रहा है तो ये आपने डेबिट कर देना है P&L में. डेबिट टू P&L. सो हाउ मच इज दिस 29 लाख माइनस 25 50. So this total loss is coming to 3,50,000.
So this is your first answer. Now you can see which option is correct. In this case, option B is correct. So then we have a second MCQ. Now they are asking you, so after few days when asset is held for sale, again how much is gain or loss? It means we have to determine what is the gain or loss when asset is classified as held for sale. तो सिंस इट इज आफ्टर फ्यू डेज तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जो अब रिवाइज वैल्यू मानी जाएगी, जो बुक वैल्यू थी आपकी एज ऑन दिस डेट व्हेन इट इज हेल्ड फॉर सेल, बुक वैल्यू बन जाएगी आपकी प्रीवियस जो फेयर वैल्यू थी आपकी रिकवरेबल अमाउंट 2550, एंड नाउ व्हाट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिस इज 25 लाख, तो इट मीन्स फर्दर इसमें लॉस हो रहा है आपको 50 हो गए. अगेन देयर विल बी इम्पेयरमेंट लॉस जो आपको चार्ज करना है पीएनएल में, डेबिट टू पीएनएल, दिस इज 50 हो गए. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन सी. Next we have MCQ number 3. So they are asking determine the gain or loss on property to be charged to profit and loss account. So at end of third quarter of current financial year which is on 31st December. अब आप देखिए आपके थर्ड MCQ में 31 दिसंबर को अब आपकी जो फेयर वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है. So it means now we have to determine. So this is as on 31st December. तो आप देखिए पहले बुक वैल्यू कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट का. कैरिंग अमाउंट आपका हो गया था जब आपने इसको हेल्ड फॉर सेल किया था इक्वल टू 25 लाख, ये आपकी बुक वैल्यू है. एंड नाउ इट इज व्हाट इज फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू हो गई जब आपकी 2650. तो इसमें जब आपकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो ये आपका गेन माना जाएगा, दिस इज गेन. तो उससे पहले आप लॉस भी चार्ज कर चुके हैं. इट मीन्स इट इज रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस, जिसे कहा गया रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस. बट दिस रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस के अलावा जो मैक्सिमम आपको जितना लॉस आपने पहले चार्ज किया है, तो इतनी देखो आपको कितना गेन हो रहा है. गेन है आपका 150. बट नाउ यू राइट व्हाट वाज योर प्रीवियस लॉस. प्रीवियस लॉस आपने अब तक चार्ज किया था. फर्स्ट वी चार्ज 350 ऑन इम्पेयरमेंट, देन 50,000 अगेन व्हेन इट इज हेल्ड फॉर सेल. इतनी प्रीवियस लॉस वाज रुपीज 4 लाख टोटल. इतनी जब आपने रिवर्सल करना है तो मैक्सिमम गेन हम ले सकते हैं अप टू 4 लाख. सो हेयर इट इज 1,50,000. सो दिस विल बी अवर गेन, इट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल which is as on 31st December. So this is maximum gain which is allowed to be reversed. Now you can see which option is correct. So answer is option number B. So next we have fourth MCQ. Again they are asking to determine gain or loss on property to be charged to P&L at reporting date ending current financial year. अब आपने देखना है as on 31st मार्च आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है. दिस इज अवर MCQ नंबर 4. तो दिस इज एज ऑन 31st मार्च. तो आप देखेंगे 31st मार्च को अगेन अवर फेयर वैल्यू है इंक्रीज टू 30 लाख. तो इट मीन अब आपको फिर गेन हो रहा है इसमें. तो गेन इज हाउ मच 30 लाख माइनस 2650. 2650 तक हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं. इट मीन्स दिस इज फर्दर 350. बट मैक्सिमम रिवर्सल कितना अलाउड है आपका 4 लाख. जितना प्रीवियस लॉस था उसमें से 150 आपने ऑलरेडी रिवर्स कर लिया है. इट मीन बैलेंस रह गया है 250. तो इस टाइम अब हम रिवर्सल कर सकते हैं. गेन रिवर्सल इज अलाउड सो अप टू 250. तो आपका आंसर आएगा ₹2,50,000 विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल. तो इसमें सब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो अब 2650 की प्लस कर दो आप 250, ये बन जाएगी अब आपकी 29 लाख. तो ये गेन है आपका जो क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल में. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए. तो नेक्स्ट MCQ नंबर 5 वी आर आस्किंग डिटरमिन गेन और लॉस ऑन प्रॉपर्टी टू बी चार्ज टू पीएनएल ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी. अब आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है फाइनली एट ₹30 लाख. तो इट मीन्स व्हाट विल हैपन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी. तो आपने देखा जो गेन हमने रिवर्स किया था मैक्सिमम उतना अलाउड था जितना आपका पहले लॉस हुआ था. इफ़ एसेट इज हेल्ड ऑन सेल, अब आपने एक्चुअल में सेल कर दिया है
तो इस टाइम को जो भी गेन या लॉस आएगा वो सारा P&L में चार्ज हो जाएगा। तो आप देखिए एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपकी बुक वैल्यू कितनी है। तो बुक वैल्यू देखो आपकी रिवाइज हो गई थी अप टू 29 लाख तक, जितना आपने आफ्टर रिवर्सल ऑफ लॉस। तो 2650 की उसमें 250 का हमने गेन जो था या प्रीवियस लॉस रिवर्स किया था, गेन हमने चार्ज ट्रांसफ़र किया था। तो इट मीन्स ये हो गया कि 29 लाख। अब आपका सेल प्राइस है 30 लैक्स। तो इट मीन्स अब आपको फर्दर गेन हो रहा है। तो देयर इज अ गेन ऑफ रुपीज 1 लाख एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू P&L at the time of sale of asset. So in this lecture we have discussed case scenario based on Ind AS 105 relative recovery when asset is classified as held on sale. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।